اسلامی عقائد میں سے نا ایک بنیادی عقیدہ آخرت ہے. جن چیزوں پر انسان ساری زندگی اعمال کرتا ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے عقیدے میں شامل ہوتی ہیں. عقیدہ جس طرح کا ہوتا ہے اسی طرح کا انسان عمل کرتا ہے. جو اس کی سوچیں ہوتی ہیں، جو افکار ہوتے ہیں، اسی طرح اپنے شب و روز گزارتا ہے. جن لوگوں کا عقیدہ آخرت مضبوط ہوتا ہے نا کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، ہم نے اس کی بارگاہ میں جا کے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، عقیدہ آخرت مضبوط ہو تو لازمی طور پر اعمال سنور جاتے ہیں. انسان جواب دہی کے تصور کے ساتھ اپنے معاملات زندگی کو بار بار صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے. عقیدہ آخرت اسلامی عقائد میں بنیادی فکر کا عقیدہ اساس ہے عقائد کی. اگر کسی شخص کا یہ خیال ہو جائے کہ میں بس یہی زندگی ہے، کھا لو پی لو موج کرو، تو ظاہر ہے وہ فنا کا نام جب رکھ لے گا زندگی کو اور وہ دوبارہ اٹھنے کا قائل ہی نہیں ہوگا تو وہ تو کسی قانون کا پابند ہی نہیں رہے گا، وہ تو کسی چیز کی پابندی نہیں کرے گا، کسی چیز سے پرہیز نہیں کرے گا، من چاہی زندگی گزارے گا. عقیدہ آخرت، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا تصور، یہ انسان کو سوار دیتا ہے. یہ ایک ایسا مراقبہ ہے جو تزکیہ نفس کر دیتا ہے. انسان کا باطن سنور جاتا ہے، اخلاقیات میں تبدیلی آتی. پھر کوئی کیمرہ بھی نہ لگا ہو نا، کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو تو بندہ پھر بھی نیک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا خیال ہوتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، صبح قیامت میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا جاؤں. تو عقیدہ آخرت کی مضبوطی، اس تصور کا مضبوط ہونا امت مسلمہ کے لیے نہایت ہی ضروری ہے. آپ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید ہماری توجہ دلاتا ہے، اور سورۃ القیامہ کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ایحسب الانسان، کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے، کیا انسان کا یہ خیال ہے ان یترک سدی، کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا، اس سے پوچھا نہیں جائے گا. کیا انسان یہ سمجھتا ہے اس سے کوئی سوال؟ ایحسب الانسان، کیا انسان اس گمان میں ہے، اس گھمنڈ میں ہے ان یترک سدی، کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اسے آزاد نہیں چھوڑا جائے گا، اس پر پابندیاں ہیں، اس پر کچھ قیود ہیں، اسے کچھ حدود بتائی گئی ہیں، اسے ایک دائرہ کار دیا گیا ہے، اسے بتایا گیا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ تیرے لیے جائز ہے، یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے. اس چیز کی حد تک تو آگے بڑھ سکتا ہے، یہاں سے اس لائن کو تو کراس نہیں کر سکتا. اس پر پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کے بیچ رہ کے وہ زندگی گزارے گا. اور یہ بھی یاد رکھے، یہ آیت ایک دوسرا معنی یہ دیتی ہے کہ یہ مت سمجھے کہ صبح قیامت اسے چھوڑ دیا جائے، اس سے پوچھا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں جب یہ کھڑا ہوگا تو اسے اپنے اعمال کا حساب دینا ہو. لازمی طور پر ایک عدالت صبح قیامت لگے گی، جس عدالت میں مجرم پیش ہوں گے، انہیں اپنے جرموں کا حساب دینا ہے. ظالموں کو کھڑا کیا جائے گا، ان سے ان کے ظلم کے بارے میں باز پرس ہو. تو لازمی طور پر عقیدہ آخرت کی مضبوطی انسان کو مضبوط کرتی، اس کے اعمال پر پیرے بیٹھ جاتے ہیں. وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، سوچ کر جملے بولتا ہے. وہ کوئی بھی معاملہ کرتا ہے تو اس میں اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں نے دنیا سے چلے جانا ہے، میرے پاس پتہ نہیں کتنا وقت بچا ہے، لہذا مجھے آخرت میں پیش ہونا ہے. اپنے معاملات کی آسانی کے لیے، وہاں کی آسانی کے لیے میں یہاں تھوڑا سوچ سمجھ کے چلوں. رب فرماتا ہے تجھے ایسے ہی آزاد نہیں چھوڑا جائے گا، آزاد پنچھیوں جیسی زندگی نہ گزار. صبح قیامت کے معاملات کو پیش نظر رکھ، اس پر غور کر. یہ تصور گھر کے باہر بھی پورا مضبوط ہونا چاہیے اور گھر کے اندر بھی پورا مضبوط ہونا چاہیے. انسان اپنے مالک سے ڈرے اور قیامت کے دن اس کی بارگاہ میں حاضری کا یقین رکھے، اور وہ یاد رکھے کہ یہاں جو کچھ وہ دیکھے نا، بچوں کو استاد پڑھاتا ہے، محنت کراتا ہے، اگر بچے نہیں پڑھتے تو ڈانٹتا بھی ہے، سمجھاتا بھی ہے، قائل بھی کرتا ہے. اور جب وہ آخری بات کرتا ہے تو پھر وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، اگر نہ پڑھو گے تو امتحان تو آنا ہی ہے نا، رزلٹ تو آنا ہے، پیپر میں بیٹھو گے نہیں آئے گا، فیل ہو جاؤ گے. یہ لاسٹ پر یہ بات ضرور ہوتی ہے. یہ امتحان دینے کا تصور اور امتحانی سینٹر میں جانے کا خیال طالب علم کو مجبور کرتا ہے کہ میں اسباق تیار کروں، میں بار بار اس پر غور کروں، میں کتاب کو سمجھوں، میں اس کو حل کروں چیزوں کو، تاکہ جب میں مرکز میں جاؤں پرچہ دینے کے لیے امتحانی سینٹر میں تو پھر مجھے پریشانی کوئی نہ ہو،
بس समझाने के लिए बात अर्ज है कि यहाँ लोगों को बताया जाता है, कायल किया जाता है, ये हलाल है, ये हराम है, ये तेरे लिए ठीक नहीं है, ये तेरी हुदूद है, ये तेरे कुयूद हैं, ये तेरा दायरा कार है. लेकिन अगर फिर भी कोई बंदा बाज ना आए, फिर भी कोई शख्स बाज ना आए, तो फिर उसको कहा जाएगा सुबह क़यामत अल्लाह खुद हिसाब ले लेगा. फिर तुझे मालिक अपने सामने खड़ा करेगा. सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम. फिर वो तुझसे एक एक नेमत के बारे में सवाल कर लेगा, फिर तुझे जवाब देना होगा. तो इस तसव्वुर को अपनी जिंदगी में लागू करें कि हमने मरना है, अल्लाह की बारगाह में जान. इस तसव्वुर को पूरी तौर पर तारी करें अपने ज़हनों. ये जो रस्मी सी बात है ना, पता नहीं कब चले जाना है, जो जाने वाले होते हैं उनकी कोई तैयारी भी होती है. जिनको पता होता है ना, वो रमजान अल मुबारक में ना कई दफा ऐसा होता है कि टिकटें नहीं मिल रही होती और उम्रे के वीजे लग चुके होते हैं, तो एजेंट कह देते हैं जाने वालों को कि तैयारी रखना, किसी वक्त भी मेरा फोन आ जाएगा. तो लोगों ने बैग बांध लिए होते हैं, सामान तैयार कर लिया होता है, सारे इंतजामात करके रखे. क्यों? कि पता नहीं किस वक्त बुलावा आ जाएगा. तो तू तो रोज कहता है पता नहीं अल्लाह की जानिब से किस वक्त बुलावा आ जाएगा. फिर अपनी तैयारी भी तो यार कुछ बताना, मैं भी बताऊं, आप भी बताएं. फिर हम अपने आप से ये भी तो सवाल करें ना कि जहां अचानक जाना पड़े उसके लिए तैयारी होती. हमारी तैयारी क्या है अगर अचानक जाने पड़े उसकी बारगाह? क्या तैयारी? रोज देख रहे हैं ना, कुछ लोग रोड पे चढ़े थे, पहुंच नहीं सके. हॉस्पिटल गए थे, पहुंच नहीं सके. कुछ लोग किसी फील्ड में काम कर रहे थे, डिग्री नहीं मिल सकी, जा ही नहीं सके, वक्त आ गया. तो अगर वो टाइम आ जाता है, उसकी बारगाह में हाजिर होना पड़ जाता है. तैयारी क्या है? नबी पाक अलैहिस्सलाम घर के अंदर अपने घर वालों की तरबियत के लिए और तालीम उम्मत के लिए एक दुआ मांगते थे. हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं हुजूर दुआ मांगते थे, मिशकात में मौजूद है. क्या दुआ थी? अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा. ऐ अल्लाह जरा हिसाब आसान करके लेना. ये हुजूर तालीम उम्मत के लिए दुआ मांगते, अल्लाह हिसाब जरा आसान करके लीजिए, मालिक करम फरमाना. तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है, मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आसान हिसाब का क्या मतलब है? तो हुजूर फरमाने लगे, आयशा आसान हिसाब का मतलब ये है कि रब करीम बंदे के नामा अमाल पर नजर डालेगा और फिर अल्लाह तबारक व तआला उससे दरगुजर फरमा देगा. ये आसान हिसाब है. पता मालिक को है इसने क्या किया है, पर करीम है ना. अदल करे थे थर थर कंबन, उचियां शाना वाले ते जे फजल करे थे, फिर बख्शे जामन मेरे जय मुंह काले. नजर करेगा फिर माफ फरमा देगा. और हुजूर फरमाते आयशा याद रखो, जिससे उसने हिसाब लिया वो फिर बड़ी मुश्किल में आ जाएगा, उसके लिए मुश्किल हो. अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा. ऐ अल्लाह तू हिसाब जरा आसान करके लेना, जरा आसान करके. ये तालीम उम्मत के कि उम्मत के दिल में ख्याल पैदा हो कि हिसाब देना है, तूने हिसाब देना है, तूने अपने माल का हिसाब देना है, तूने अपने लफ्जों का हिसाब देना है, तूने मामलात का हिसाब देना है. तू जिस कुर्सी पे बैठा है, तू क्लर्क है या सदर है, तूने अपनी उस नशिस्त का हिसाब देना. तू उस्ताद है या पीरे तरीकत है, तू मुअज्जिन है या खतीब है, तू जो भी है तूने हिसाब देना है. तुझे तेरे मनसब के बारे में पूछा जाएगा, तुझे तेरे ओहदे के बारे में पूछा जाएगा, तुझे अपनी जिम्मेदारियों के बारे में हिसाब देना. अल्लाह की बारगाह में तुम्हें जाके बताना है कि तुमने क्या आमाल की. इस तसव्वुर को पक्का करें अपने. ये तसव्वुर कितना को पक्का होना चाहिए, दुनिया क्या है और आखिरत क्या है. हमारे यहाँ लोगों ने बहुत बड़ा लंबा चौड़ा दुनिया का तसव्वुर बना लिया. कारे जहां दराज है, लंबा तसव्वुर, दुनियादारी के लिए लंबी मंसूबाबंदी, दूर दूर तक. मैंने ये करना है, फिर मैंने ये करना है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ये कर देना. ये तो आपने 300 साल की प्लानिंग बता दी है. ये तो 300 साल की प्लानिंग बताई. क्या बताएं तुझे ए बाप, क्या कार हाय नुमाया कर गए. बीए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली, फिर मर गए. जिंदगी तो इतनी सी है, इतनी लंबी मंसूबाबंदी. इसमें आखिरत कहाँ है? इसमें अगर किसी मकाम पर रब की बारगाह में हाजिर होना है तो वो कहाँ है? जो मरने वाले लोग होते हैं उनका तो जीना कुछ और तरह का होता है, जिनको जाना होता है उनका रहना तो कुछ और तरह का होता है. जिनको किसी जगह मुंतकिल होना होता है, जो आरजी मकानों में रहते हैं, उनका रहन सहन तो जरा और तरह का होता है. लेकिन जो हमारा अंदाज है, जो हमारा रहन सहन है, जो हमारा तरीका कार है, वो तो मुस्तकिल रहने का है. वो तो लगता है कि कभी छोड़ने वाले नहीं है. उसमें तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती कि जिसमें हम महसूस करें कि हमने छोड़ के जाना है.
لیکن نبی پاک علیہ السلام نے جس دنیا کو ہم بہت بڑی دنیا سمجھتے ہیں، حضور نے اس کی مثال کیا دی؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، دیکھیں کتنا کھول کر اور کتنا آسان کر کے رسول پاک ہمیں بات سمجھاتے ہیں۔ دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، یہ والی زندگی کیا ہے، آخرت کی زندگی کیا، بالکل کھول کر واضح کر کے نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے جس طرح دریا بہ رہا ہو اور کوئی آدمی اس میں انگلی ڈبوئے، جتنا پانی اس کی انگلی کو لگ گیا یہ دنیا ہے، اور جو باقی ٹھاٹھے مارتا دریا پیچھے ہے، سمندر پیچھے ہے، وہ سارا آخرت ہے۔ یہ اتنی سی دنیا ہے، یہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اتنی سی دنیا کے لیے اتنے پاپڑ بیلنا، اتنی سی دنیا کے لیے اتنے ظلم کرنا، اتنی سی دنیا کے لیے اتنے حق ضائع کرنا، اتنی سی دنیا کے لیے اتنے لوگوں کے دل توڑنا، اتنے حقوق پہ ڈھاکہ ڈالنا، اتنا جبر کرنا، لوگوں کا مال کھانا، لوگوں کو تکلیف دینا، عزتیں اچھالنا، اتنی سی دنیا کے لیے۔ حضور فرمانے لگے اتنی سی ہے یہ دنیا، جتنا انگلی کو پانی لگ گیا ہے وہ جنت، جو میری جنت نہیں خدا کا فضل ہے، جو اللہ کی عطا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ میرے کریم فرمانے لگے اس جنت میں وہ نعمتیں ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ تمہارے دل پر کبھی خیال ہی گزرا ہوگا کہ ہمارا رب ہمیں یہ عطا فرمانے والا ہے۔ تھوڑا سا نا 24 گھنٹوں میں کچھ ٹائم اپنی آخرت کے لیے، اپنے سارے معاملات کو مرتب کرتے ہوئے کچھ زندگی کے کام اپنی آخرت کے لیے۔ آپ یقین کریں بچوں سے لے کر بڑوں تک، ان پڑھ سے لے کر پڑھے لکھے تک، ہم نے جس کو اپنے مزاج کے مطابق کم فہم سمجھا اس سے لے کر دانشور تک دوڑ لگ گئی دنیا جمع کرنے کی۔ وہ ایک سوچ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، ہزاروں لوگ ان کی خدمت میں آیا کرتے تھے تو کہتے ہیں رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، یہ تے جو ملے ہے طالب زردہ ہوں، یہ تو دعا کرانے آئے ہیں کہ میرا کاروبار نہیں چلتا، یہ تو دعا کرانے آئے ہیں کہ جناب وہ میرا جو ہے وہ فلانا کیس الجھ گیا۔ رب دا طالب کوئی نہ مل۔ کوئی ایسا تو آتا جو کہتا میری اس سے ملاقات کرا دے، کوئی طریقہ بتائے مالک معرفت کیسے دیتا ہے۔ کوئی تو ایسا آتا جو کہتا کہ آؤ نہ کچھ باتیں درد کی کریں، کچھ عشق رسول کی تم کرو، کچھ محبت مصطفیٰ کی میں کروں۔ کچھ ایسے آتے جو کہتے آؤ نہ کوئی ذکر چھیڑے صدیق اکبر کا، کوئی بات کریں سیدنا فاروق اعظم کی، کچھ تذکرے ہو جائیں عثمان غنی کے، تھوڑی دیر ہو نہ جائے مولا علی کا تذکرہ۔ کچھ لوگ ہوتے نا ایسے جو اس طرح کے ہوتے، لیکن وہ ہر وقت دنیا داری، ہر وقت اچھا کہیں اکتاتے بھی ہیں نا، تھک گئے کاروبار کر کر کے، کہیں اکتاتے بھی ہیں تو کرتے کیا ہیں، سیر کرنے چلے جاتے ہیں۔ میں جی بور ہو گیا ہوں کام کرتے کرتے، چلو میں اب ٹھنڈے علاقے میں چلتا ہوں۔ کبھی تو ایسا ہونا تو کہے میں نے بچوں کو بھی وقت دیا ہے، دوستوں کو بھی دیا ہے، یاروں کو بھی دیا ہے، صحت کو بھی دیا ہے، میں نے ٹائم اپنے شوق کو بھی دیا ہے، اب میں کسی کو ٹائم نہیں دوں گا، یہ چند گھنٹے میں صرف رب رسول کی بارگاہ میں حاضری دوں گا۔ تو ذرا جم کے قرآن پاک پڑھے، تو ذرا ذوق سے درود پاک پڑھے، تو ذرا شوق سے میرے محبوب کی نعت سنے، تو سارا زمانہ بھول جائے اور تو رج رج کے دعا مانگے اپنے رب کی بارگاہ میں، اپنی پریشانیاں عرض کرے، اپنے اندر کی کیفیت بیان کرے۔ دل جو سخت ہو گیا ہے، ذہن جو سخت ہو گیا ہے، جو طبیعت میں وہ نورانیت نہیں آ رہی، اس کی تو بات کرے، تو اپنے رب کی بارگاہ میں معافی کا سوال کرے، تو اس سے قیامت کے دن درگزر کرنے کے لیے عرض کرے، کچھ تو ایسا ٹائم نکلے۔ لیکن دوستو ہم تو بالکل الجھتے ہی جا رہے ہیں۔ وہ معاملات زندگی ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہے، شوق ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہے، باتیں ہیں کہ بڑھتی چلی جا رہی۔ دور گزر گیا جب لوگ کہتے تھے کہ کوئی درود پاک بتائیں جس سے سرکار راضی ہو۔ ایک ہی مسئلہ ہے، کام نہیں چلتا۔ ایک صاحب آئے، کام نہیں چلتا، میں نے کہا سورہ واقعہ پڑھا کریں، کہتے ہیں حضرت میں بڑی دیر سے پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا چلے کچھ صدقات دے کے دیکھ لے، کہنے لگے بڑی دیر سے دے رہا ہوں۔ میں نے انہیں ایک اور وظیفہ بتایا، کہنے لگے یہ بھی مجھے کسی نے بتایا تھا، بڑی دیر سے کر رہا ہوں۔ تو میں نے انہیں کہا پھر میری ایک ناقص رائے یہ ہے کہ سارا کچھ کرنے کے بعد اگر ابھی تک پھر بھی آپ سمجھ رہے ہیں نا آپ کی مرضی کے مطابق آپ پر دروازے نہیں کھول رہے، پھر آپ صبر کریں، جو میرا رب چاہتا ہے اس پہ راضی رہ کے دیکھیں، پھر ذرا راضی رہ کے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ مالک کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ آپ کے حق میں کوئی رحمت والا فیصلہ ہی فرمائے گا، پھر ذرا انتظار کر کے دیکھیں، پھر ذرا صبر کر کے دیکھیں۔ پھر وہ کہتا ہے وبشر الصابرین، محبوب یہ جنہوں نے صبر کیا ہے انہیں میری رحمت کی خوشخبری سنا دو۔
फिर वो कहता है बाकियों के पास माल होगा, दौलत होगी, इख्तिदार होगा, बड़ा कुछ होगा, इन्नल्लाह मास साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ रब करीम होगा। फिर जरा ठहर ही जाएं, फिर थोड़ा हौसला ही कर लें, फिर उसके फैसले का जरा इंतजार करके देखें। हम ना मन चाहिए जिंदगी के पीछे परेशान है अपनी आखिरत के। और आखिरत करती क्या है? जब आपका आखिरत पर यकीन पक्का हो जाता है ना, फिर लाजमी तौर पर इंसान के अमाल संवरते हैं। आप यकीन करें, संवरते हैं, 100% संवरते हैं। आप आखिरत पर जितना जितना यकीन, हजरत उमर का आखिरत पर यकीन पक्का था ना, दुनिया में मकान ही कोई नहीं बनाया, पक्का था। सैयदना मौला अली शेर खुदा अमीरुल मोमिनीन भी हो गए तो तामत फिर भी फटी हुई थी, पक्का यकीन था ना कि अल्लाह ने हमारे लिए आगे बड़ी नेमतें तैयार की हुई है। हुजूर ने आके फरमाया था ना कि उमर मैं तेरा घर देख आया हूं जन्नत में, यकीन पक्का था ना बड़ा कुछ मिलने वाला है। तो जिन लोगों का पक्का होना कि मेरा देश में घर है, वो प्रदेश में बिल्डिंगें नहीं बनाया करते, उनको पता था कि हमारे देश में घर बने हुए हैं, लिहाजा यहाँ वो किसी परेशानी का शिकार। और दूसरा, जब बंदे का आखिरत पर यकीन पक्का हो जाता है ना, एक बात आपने जरूर ज़हन में रखनी है। हमारे मुहद्दिसीन ने लिखा है जिस बंदे का सिर्फ दुनियादारी में जीने का मिजाज हो जाता है ना, वो बुज़दिल हो जाता है। और जिसका ख्याल होता है ना जिंदगी आर्जी है, सुबह क़यामत दोबारा उठूंगा, वो बंदा बहादुर हो जाता है। जिसका ख्याल है ना यही कुछ है, खा लो पी लो, बस ये जिंदगी खत्म हो गई तो खत्म हो गई, मर गए तो मर गए, खत्म हो गए, फना हो गए, उन लोगों का मिजाज बुज़दिलाना हो जाता है, जुर्रतमंद नहीं रहते। और जिनका ये ख्याल होता है ना मरने के बाद भी उठना है, एक नई जिंदगी अल्लाह अता करेगा, वो लोग फिर मौत से घबराते नहीं, उन्हें मरने से डर नहीं लगता। फिर मौत का लफ्ज कोई बंदा सुना कि उन्हें ब्लैकमेल नहीं कर सकता, वो बंदे ताकतवर हो जाते, बाहिम्मत हो जाते। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला फरमाते हैं, बुखारी में हदीस है, फरमाते हैं एक ओहद वाले दिन ना एक सहाबी खजूर खा रहे थे, तो खजूर खाते खाते उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज की, हुजूर अगर मैं आज शहीद हो जाऊं तो कहां जाऊंगा? तो महबूब फरमाने लगे, मेरा रब अपने फजल से तुझे जन्नत अता करेगा। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते उस बंदे ने क्या किया, उसने ना खजूर जितनी खा ली थी, खा ली, बाकी निकाल दी मुंह से, तलवार ली, मैदान में गए, शहीद हो गए। सबक हमें क्या दिया? कहने लगे जब मरते ही अल्लाह ताला जन्नत अता करेगा, फिर खजूर खाते खाते रहने वाली देर भी क्यों करनी है? फिर छोड़ो, जन्नत में जाके अल्लाह के दिए हुए इनाम खाएंगे। खजूर खाने की भी देर बर्दाश्त नहीं की। ये आखिरत का अजर, आखिरत में रब की बारगाह में खड़े होने का तसव्वुर बंदे को ताकतवर कर देता। वो बुज़दिल, इकबाल क्या कहते हैं? इकबाल कहते हैं मौत को समझे है गाफिल इख्तिताम में जिंदगी, ये है शाम में जिंदगी, फिर सुबह दवा में जिंदगी। और हज़रत बुल्ले शाह भी बोल पड़े, वो कहने लगे अरश फरश्ते बांगा मिलिया मक्के पै गया शोर, बुल्ले शाह आसान नहीं मरना, ये ते मर गया ही कोई होर, ये तो किसी। और फिर एक और दरवेश बोले, वो कहने लगे वारस शाह ओ कदों मर दे, वारस शाह ओ कदों मर दे जिन्हां कीतियां नेक कमाइयां ने। वो तो अल्लाह की बारगाह में इनाम पाते हैं। एक पुल है मौत, इस पुल से गुजरते हैं, फिर रब का फजल उन्हें मिलता है। मैं कई दफा कह चुका हूं, फिर कहता हूं, ये जब बहुत टेंशन बन गई ना, डिप्रेशन बहुत बढ़ गया, कोविड-19 के दिन थे, कोरोना के, तो मुझे एक सरकारी इदारे में बुलाया गया जहां उस अमले को मैंने गुफ्तगू करनी थी, उस अमले से जो मरीजों को देख रहा था। कहने लगे, मुझे वहां के जो हेड थे कहने लगे, पीर साहब बड़ा डिप्रेशन बढ़ा है, लोग डर रहे हैं, वक्ती तौर पे खौफ भी बड़ा था। तो मैंने एक साहब से वहां कहा कि इतना खौफ किस बात का? कहने लगे, जी मुझे तो ज्यादा हुजूम आ जाए तो मेरा सांस नहीं निकलता, तो कब्र में तो खिड़की कोई नहीं, तो तसव्वुर सोच सोच के मैं डरता हूं। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब, मां के पेट में जो रब ऑक्सीजन देता है वो कब्र में भी देगा। तो उन्होंने आपकी तरह सुभान अल्लाह नहीं की, क्योंकि वो डॉक्टर साहब थे ना। सियाने बंदे को समझाना भी काफी सियाने बंदे का काम है, वो ज्यादा सियाने थे। लेकिन ना, सोते को जगाना तो काम है, और अगर जागते को जगाना पड़ जाए तो बहुत मुश्किल काम होता है। वो डॉक्टर साहब थे, वो कहने लगे, जी हजरत साहब, वो तो माँ सांस लेती है तो वो बच्चे को जाता है, वो ऑक्सीजन माँ के सांस की बुनियाद पे मिलती है, तो कब्र में वो कैसे होगा? मैंने कहा चलें ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी ये दलील भी मान लेते हैं। वो जो अंडे से बच्चा निकलता है, वो चारों जानब कोई सुराख होता है? डॉक्टर साहब ने कलम छोड़ दिया, रख दिया। मैंने कहा चलो ये भी बताओ, जिंदा ही निकलता है? कहने लगे बिल्कुल। तो मैंने कहा सोना भी निकलता है?
कहने लगे बड़ा ही प्यारा होता है। मैंने कहा इंशाअल्लाह जब हम कब्रों से निकलेंगे मुस्तफ़ा का सदका, यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफ्दा, रब कहता है तुम जब निकलोगे ना कब्रों से, मुत्तकी मोमिन जब निकलेंगे तो रब की बारगाह में मेहमान बनाकर पेश किए जाएंगे। ए रब दे परौने होंगे क़यामत में, वो मेहमान बनाकर पेश किए जाएंगे अल्लाह की बारगाह, मेहमान बनाकर। दोस्तों, कब्र सिर्फ दोज़ख का गड़ा नहीं है, दोज़ख का गड़ा भी, लेकिन उसके लिए जिसने दुनिया में रह के सिर्फ दुनिया इकट्ठी की, आखिरत के लिए जमा कुछ नहीं किया, और जिसने यहाँ रह के वहां के लिए कोशिश की, सुबह से शाम तक डरा कहीं मेरा रब नाराज ना हो जाए, कहीं हुजूर की बताई हुई हदें माज़अल्लाह मुझसे क्रॉस ना हो जाए, जिसने मोहताज जिंदगी गुजारी, उसकी कब्र गड़ा नहीं, खड्डा नहीं, बल्कि हुजूर फरमाते हैं रौदतुम मिन रियाज़िल जन्ना, उसकी कब्र तो बाग है, बाग। एक मिनट के लिए सिर्फ सोचना, बंदा फौत और सीधा उसे बाग में छोड़ा है कोई, बाग है कब्र, बाग। और बाग भी मामूली नहीं, मामूली क्यारी नहीं, रौदतुम मिन रियाज़िल जन्ना, जन्नत के बागों में से बाग। और बाग इतना सोना है जिसमें आंख खुलेगी तो पहली ज़ियारत ही मदीने वाले रसूल की नसीब होगी। तो खौफ आता है वहां जाते हुए। पहले भी मैंने कहा था, फिर कहता हूं, ओ मरहूम आसी ने कहा था, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, ओ कब्र की रात है उनसे मुलाकात की रात। आज तो मुलाकात। तो ये जो अकीदा आखिरत है ये इंसान को बुज़दिल नहीं करता, बहादुर कर देता है। जो लोग अकीदा आखिरत नहीं रखते बुज़दिल हो जाते हैं, और लाजमी तौर पर बुज़दिल हो जाते हैं। इसी तरह ये जो अकीदा आखिरत है ये सब्र और तहम्मुल पैदा करता है इंसानी जिंदगी में, ठहराव पैदा करता है। इंसान महसूस करता है कि कुल दुनिया ये नहीं, आगे भी अल्लाह बड़ा कुछ अता फरमाने वाला है। उसके मिजाज के अंदर तहम्मुल, बुर्दबारी, सुकून रहता है। यानी नहीं भी अगर किसी मजलूम को इंसाफ मिल सका दुनिया में तो वो फिर भी बेसब्रा नहीं होता, वो ठहराव का शिकार है। उसे पता है क़यामत के दिन भी एक अदालत लगेगी, अल्लाह की बारगाह में जाना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर सींगों वाली बकरी ने बगैर सींगों वाली बकरी को तकलीफ दी होगी तो क़यामत के दिन उसे भी बदला देना पड़ेगा। तो ये तहम्मुल पैदा करता है, इंसान को एक हौसला होता है कि सारी अदालतें यहाँ नहीं, क़यामत में भी लगनी। जब इंसान अकीदा आखिरत रखता है ना तो फिर उसके लिए ना रब के रास्ते में खैरात करना बड़ा आसान हो जाता है। फिर ना वो महसूस करता है कि मैंने सारा कुछ यहाँ के लिए जमा नहीं करना, कुछ मैंने वहां के लिए भी जमा करना। वो फिर अपनी आखिरत के लिए कुछ ना एक बैंक आखिरत का भी बना लेता है, उसमें भी कुछ ना कुछ जमा कराता रहता है। उसे पता होता है कि मैंने अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है, वहां की भी कुछ ना कुछ तैयारी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बकरा भेजा घर में ज़िबा करने के लिए, तो सरकार तशरीफ लाए सरे शाम, तो फरमाया क्या बना? अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारा बांट दिया है, मोहल्लेदारों में, रिश्तेदारों में, गरीबों में सारा बांट दिया, बकरे की एक दस्ती सिर्फ बची है, आपके लिए रखी है। तो हुजूर ने तवज्जो क्या दिलाई, महबूब ने किस तरफ रुख किया? हुजूर फरमाने लगे अपने अहले खाना से, अज़वाज मुतहरात से, करीम फरमाने लगे आयशा वो जो तुमने बांट दिया ना वो सारा ही बच गया है, वो सारा जखीरा हो गया, वो जमा हो गया आखिरत के लिए, वो हमारे पास बच गया। ये जो तुम समझते हो ना ये बचा के रखा है, ये तो हम इस्तेमाल कर लेंगे, वो हमने सेव कर लिया है, वो बच गया है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने खादिम से कहने लगे कि मुझे पता चला है यहाँ फलां जगह कुछ गरीब लोग आए हैं, तो इस तरह करना, जो अच्छा ऊंट है ना मेरे ऊंटों में से अच्छा ऊंट, वो ज़िबा करके ना तो उन सारे घरों में तकसीम कर दो, जितना गोश्त वहां भेजोगे उतना ही मेरे घर में भी भेज देना। आपका वो खादिम कहता है मैंने अपनी समझ के मुताबिक अच्छा ऊंट ज़िबा करके गोश्त बना के मैंने बांटा, और मैंने इस तरह किया कि वो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी के घर भी उतना ही गोश्त भेजा जितना तमाम गुराबा के यहाँ मैंने बांटा था। शाम को जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी अपने ऊँटों के बाड़े में आए जहाँ बांधा करते थे अपनी हवेली में, तो आके देखा कि वो सुर्ख बेहतरीन ऊँट जो सबसे बेहतरीन था वो तो खड़ा है। तो आप अपने खादिम से कहने लगे मैंने तुम्हें कहा था जो सबसे अच्छा है उसको ज़िबा करना, तो वो कहने लगा हुजूर वो बाकियों में से सबसे अच्छा था, इससे ही थोड़ा सा कमजोर था, और ये तो आपकी सवारी के लिए है ना, ये तो आपके काम आता है, इस पे तो आप सफर करते, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया, और इसके बाद जो सबसे अच्छा था वो मैंने ज़िबा कर दिया। तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाने लगे तू शायद समझा नहीं, मैं उसे भी सवारी के लिए रखना चाहता था पर अपनी आखिरत की सवारी के लिए। मेरा दिल था वो जो आखिरत में सफर करना है ना, दुश्वार गुजार घाटियां हैं, उन घाटियों के लिए वो ऊंट मेरे काम आ जाएगा, लिहाजा मैंने तुझे कहा था जो सबसे बेहतर हो वो दे देना, ताकि जरा मेरी आखिरत की सवारी बन जाए, ताकि मैं जखीरा कर लूं।
बड़ा दिया बाल बच्चों को, बड़ा दिया बहन भाइयों को, बड़ा दिया दोस्त अहबाब को, बड़े कर्जे दिए इधर उधर, लेकिन सारी जिंदगी दिए, एक मौके पर सिर्फ आपने किसी को इनकार किया ना, एक मौके पर, तो वो पिछले जो 99 दफा आपने दिया होता है वो उसका भी मुनकर हो जाता है। वो कहता है तूने कभी काम भी नहीं आया, वो तूने तो मेरी उम्मीद ही तोड़ दी। वो सारे शिकवे, सारी जिंदगी कहां खर्च कर दी भला, किस मकाम पर। और यहां हाल ये है कि हुजूर फरमाते हैं जब तू सदका देता है तो रब उसे अपने दस्ते कुदरत में लेता है, और इस तरह तुम्हारे सदके को पालता है जिस तरह तुम अपने घर में बछड़ा नहीं पालते। इस तरह सुबह कयामत तुम्हें वो नतीजे के तौर पर पला हुआ सदका मिलेगा। हम अपनी आखिरत को चूंकि उस लेवल पर यकीन नहीं लाते इल्ला माशाअल्लाह, लिहाजा उसकी तैयारी के लिए जखीरा नहीं करते। अपनी आखिरत की तैयारी के लिए जखीरा करें और कोशिश करें कि और ये अकीदा अपनी औलादों में, अपने मुताल्लिकीन में, अपने अहबाब में इसको रासिख करें। कोई ना कोई बात अकीदा आखिरत की, क़यामत की जरूर उसका तज़किरा करें। इन बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अगर अकीदा आखिरत ना हो तो दुनिया की सारी चीजें वैसे ही लोगों को अजीब लगने लग जाएं। अगर कोई क़यामत ही कायम ना हो तो मजलूम रह गया, जालिम ने तो फिर जुल्म ही कमाया, वो तो फिर दंदनाता फिरेगा। तो रब कहता है अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या इंसान समझता है कि इसे यूं ही छोड़ दिया जाएगा, कोई इसे आजाद ही छोड़ दिया जाएगा, कुछ पूछा ही नहीं जाएगा। सुबह क़यामत सवाल होंगे, रब की बारगाह में हाजिरी होगी, अल्लाह के हुजूर सवालात के जवाब देने होंगे। लिहाजा अपनी जिंदगी के आमाल को मुरत्तब करते वक्त, कोई भी काम करते वक्त एक तसव्वुर जरूर जहन में रखें कि मुझे सुबह क़यामत इसका हिसाब देना है। ये जो जवाबदही का तसव्वुर होता है ये इंसान पर पहरेदार होता है, ये उसको मजबूत करता है, उसकी अकीदे की बुनियादें उसके अमल को ताकतवर कर देती हैं। लिहाजा अकीदा आखिरत अपने बच्चों में, आने वाली नस्लों में, आप देखें हुजूर ने ये अकीदा आखिरत मजबूत कर दिया था ना, तो फिर सैयदा फातिमा ज़हरा ने कच्चे मकान में सारी जिंदगी गुजार दी। फिर महबूब पाक ने देखा कि वो ऊंट के बालों की बनी हुई चादर ओढ़ के चक्की पीस रही हैं, तो महबूब ने ये नहीं फरमाया कि अल्लाह आसानी कर देगा, अच्छा वक्त आ जाएगा, तो फिक्र ना करना, ये मुश्किल ना। महबूब करीम ने फरमाया फातिमा दुनिया में थोड़ी मुशक्कत बर्दाश्त करो, अल्लाह आखिरत की सारी सादतें आपको ही अता फरमाएगा। गोया करीम ने फरमाया आपको यूं ही जिंदगी गुजारनी है, यही तर्ज रखनी है, इसी तरह ही आपको वक्त गुजारना है। जो आराम का वक्त है वो अल्लाह ताला जन्नत में अता करेगा। अकीदा आखिरत की मजबूती, थोड़ा सा हमारे एक बड़े करीबी दोस्त थे, बड़ा मेरा उनसे प्यार था, 34.5 साल उम्र, खुद हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर, लेकिन ये पिछले हफ्ते वो मरीजों को चेक करके नीचे आके दफ्तर में बैठे। एक तो लोग कहते हैं ना अस्पताल पहुंच जाता तो शायद बच जाता, तो हॉस्पिटल के अंदर ही थे और अभी चढ़ती जवानी, 34-35 साल उम्र। लेकिन कमाल ये था कि मेरे जैसे कई लोगों ने भी आंसू इसलिए बहाए कि इतनी चढ़ती जवानी में, इतने खूबसूरत माहौल के अंदर भी उन्होंने मिजाज खैर खाई का बनाया हुआ था। हर शख्स से हुस्ने कलाम और रब रसूल की तरफ अपना लगाओ, नमाज की पाबंदी, जब भी हाल पूछना तो कहते थे अल्लाह और उसके रसूल का फजल है। तो अपनी जिंदगी में जिन लोगों का तसव्वुर आखिरत मजबूत हो जाता है वो कई दफा जल्दी भी सिमट कर चले जाएं तो उनके हक में रहमत वाले फैसले होते हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता करे।